Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which I have discussed the various powers of the Bar Council of India and about the rest powers of the Bar Council of India, and in the next part, the powers of the State Bar Council of India, I will have to discuss with you. So let's start for today's discussion on the same topic. So, in my last lecture, I have discussed the powers of the Bar Council of India. In the continuance of that, today I am going to take another point of the power of the Bar Council of India, in which I'll start from the section 49A. So, section 49A, what says about the powers of the Bar Council of India, right? So, section 49A empowers the central government to make rules. Okay, I have discussed with you that the section 49 give powers to the Bar Council of India to make general rules, right? So section 49A, what speaks about the powers of the Bar Council of India? Section 49A says that it provides that the central government may, by notification in the official gazette, make rules for carrying out the purpose of this act, including rules with respect to any matter for which the Bar Council of India or a state bar council has power to make rules. देखिए यहाँ पर जो 49A में BCI का जो पावर है वो उसको थोड़ा सा और इन्हेंस किया गया है. इन्हेंस किस वे में किया गया है कि वो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल बनाने की पावर है उसको और भी बढ़ा सकती है, उसको एक्सटेंड कर सकती है. किसके लिए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए और स्टेट बार काउंसिल के लिए भी. ठीक है. अगेन वो फर्दर बोलते हैं कि इट हैज़ बीन मेड क्लियर दैट इफ़ एनी प्रोविज़न ऑफ अ रूल मेड बाय बार काउंसिल is repugnant to any provision of a rule made by the central government under this section, then the rule under this section shall prevail, and the rule made by the Bar Council shall, to the extent of the repugnancy, be void. देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बनाया है जो BCI की पावर को इन्हेंस करता है या स्टेट गवर्नमेंट की पावर को इन्हेंस करता है, और उस पावर को यूज़ करते हुए BCI स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बना दिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट नोटिफिकेशंस में जो गाइडलाइंस हैं उनके बियॉन्ड जाकर काम कर रहा है, तो फिर कौन सा रूल जो है वो इफ़ेक्टिव होगा, यहाँ पर ये बताया गया है. तो देखिए, कीप इट क्लियर इन योर माइंड कि अगर कोई ऐसा रूल BCI या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड रूल्स के अगेंस्ट है या उसको उसकी जो बियॉन्ड जा कर के बनाया गया है, तो वो रूल जो है वो वॉइड होगा. इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि कोई रूल बनाने की जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है उसके बियॉन्ड जाकर BCI काम नहीं कर सकता या स्टेट बार काउंसिल काम नहीं कर सकता. ओके, इज इट क्लियर? फाइन. सो कम टू द नेक्स्ट. तो every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session, immediately following the session, or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule, or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified forms, or be of no effect as the case may be. So, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
देखिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि जब भी कोई ऐसा रूल बनाया जाता है किसी प्रकार का, जब हमें बीसीआई को पावर्स इन्हेंस की गई हैं और उसके रेफरेंस में कोई रूल बनाया जाता है, तो वो जो रूल है उसके बारे में संसद के दोनों जो सदन है उसमें चर्चा की जाएगी, और ऐसी चर्चा 1, 2 या अधिक बार की जा सकती है सेम सेशन में, ठीक है, और या फिर आने वाले जो उसके सक्सेसिव सेशंस होते हैं उनमें। और उस सेशन के एक्सपायर होने से पहले ही अगर उस रूल के बारे में, उस रूल को जो बनाया गया है उसके बारे में कंसेंट मिल जाती है तो वो वैसे की वैसे लागू हो जाता है। अदरवाइज़ अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने के लिए रिकमेंडेशंस दी जाती हैं तो वो मॉडिफिकेशंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही लागू होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और उस रूल को लागू कर दिया जाता है तो वो जो रूल है वो नल एंड वॉइड होगा, ठीक है, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं होगा अगर पार्लियामेंट के सेशंस के रिकमेंडेशन के बिना उसे लागू कर दिया जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये पावर दी गई है कि वो बीसीआई और स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट बार काउंसिल जो हैं उनके रूल मेकिंग जो पावर है उसमें वृद्धि कर सकती है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर ऐसे रूल्स के अगेंस्ट या उसके बियॉन्ड जाकर बीसीआई स्टेट बार काउंसिल्स कोई काम करते हैं तो वो वॉइड होगा, उसे हम शून्य मानते हैं, राइट। सो ये जो हमारा टॉपिक था आज कि हमने देखा कि किस प्रकार जनरल पावर्स जो हैं वो सेक्शन 49 में दी गई हैं और एक्स्ट्रा पावर्स ग्रांट करने की जो शक्ति है वो 49A में दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पावर टू पनिश फॉर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। देखिए, अभी तक हम सिर्फ अधिकार की बात कर रहे हैं, अभी हम समय है कि हम कर्तव्यों के बारे में भी जानें। तो एक जो एडवोकेट है उसकी क्या ड्यूटीज़ होते हैं और अगर वो अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं करता तो उसे क्या पेनल्टी या पनिशमेंट दिया जा सकता है, ये बताया गया है आगे जो पावर है उसके अंदर। तो सेक्शन 36 ऑफ द एडवोकेट एक्ट एम्पावर्स द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू पनिश एन एडवोकेट फॉर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। देखिए, सेक्शन 36 जो एडवोकेट एक्ट 1961 का है वो ये कहता है कि अगर कोई अधिवक्ता वृत्तिक या फिर किसी अन्य प्रकार का अवचार करता है, मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है, तो उसे पनिश करने की जो पावर दी गई है वो दी गई है सेक्शन 36 में। सेक्शन 36 आगे कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन इन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट और अदरवाइज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी एडवोकेट हुज नेम इज एंटर्ड ऑन एनी स्टेट रोल हैज़ बीन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, इट शैल रेफर द केस फॉर डिस्पोजल टू इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी। देखिए, अगर बीसीआई को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई एप्लीकेशन मिलता है या अदरवाइज़ कोई कंप्लेंट मिलती है या इस कंप्लेंट नहीं भी मिलती लेकिन बीसीआई के नॉलेज में ये बात आ जाती है कि कोई एडवोकेट जो हैं जिनका नाम स्टेट बार काउंसिल की लिस्ट में एज एन एडवोकेट एनरोल है वो प्रोफेशनल और किसी और दूसरे प्रकार के मिसकंडक्ट की उनके खिलाफ शिकायत आई है तो उस केस को, उस कंप्लेंट को डिस्पोजल के लिए जो है वो डिसिप्लिन कमेटी के पास भेज देते हैं। द डिसिप्लिन कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आइदर ऑन इट्स ऑन मोशन or on a report by any state bar council or an application made to it by any person interested withdraw for inquiry before itself any proceeding for disciplinary action against any advocate pending। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है कि अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है, ठीक है, बीसीआई के पास, तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और
और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अपनी जो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है कि क्या एडवोकेट गिल्टी है या क्या एडवोकेट गिल्टी नहीं है। तो हमने देखिए पीसीआई की जो पावर्स थी उसमें कमिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की पावर पड़ी थी, तो उसी में से एक जो ये कमेटी है डिसिप्लिन कमेटी, वो किस प्रकार अपना फंक्शन करती है इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।